हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, यू आर रिवाइजिंग योर सिलेबस वेल, द क्लासेस दैट वी आर कंडक्टिंग डेली, यू आर रिवाइजिंग देम वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास को टाइमली मैनर में रिवाइज भी कर रहे हो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो, so today we are going to conduct the class on National E-Governance, Service Delivery Gateway and E-Courts. This is the topic of today's class. आज की क्लास का टॉपिक है E-Courts, E-Justice and National E-Governance. ठीक है, Service Delivery Gateway. So what are the electronic method, digital methods through which government is providing services to the people, services to the citizens. So that we are going to discuss. वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. Now before we start today's class, आज की क्लास शुरू करने से पहले here is a very wonderful announcement for all of you. आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है, that is regarding the championship batches that are launched by Unacademy Plus. 6 months बचे हैं 2021 के एग्जामिनेशन को, right? So to stand out from the crowd, right? To put in all your efforts and to clear the exam in one single attempt. We are providing you a single championship batch. 20 plus subjects, 100 plus books are there, right? And there are so many exams. 8 exams तो आपके मेंस में होते हैं, then prelims में आपके 2 होते हैं, then your interview, right? So all these levels, and with limited time you have to prepare all these levels. So we are here to help you in saving your time, in synchronizing your syllabus and the book list and the resources, class notes, etc. And we are providing the 6 months GS batch. हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 months का GS batch for prelims and it starts on 15th of December. ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से. We are going to provide you complete GS preparation syllabus, all the classes which are going to help you complete your syllabus before prelims on time. There will be prelims test series also. Live classes will also be conducted. Doubt clearing session will also be there. And also structured schedule रहेगा, तो यानी कि आप syllabus wise, subject wise अपने chapters को cover कर सकते हो. All the topics. ठीक है, you can cover them syllabus wise. Now even if you are preparing for 2022 examination or 2023 examination, then also here is a chance for all of you to cover your syllabus before your exam. आपके एग्जाम से पहले आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, आपके पास ये चांस है. 2023 के बच्चों के लिए भी यही चांस है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 दिसंबर एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग हिस्ट्री बैचेस. मैं आपके एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के हिस्ट्री बैचेस ले रही हूँ. ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच में इनरोल करने के लिए, राइट, यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टुडे. आज ही आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज लाइव क्लासेस आर देयर, टेस्ट सीरीज विल बी देयर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस यू कैन डू, प्लस योर आंसर्स विल बी इवेल्युएटेड ऑल्सो. आपके आंसर्स को भी मेन्स टेस्ट सीरीज में इवेल्युएट किया जाएगा. तो आपको एक ही जगह मेन्स भी मिल रहा है, प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो रही है. एंड यू कैन गेट योर आपको आराम से 10% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड शर्मा20. ठीक है, तो इस कोड को यूज करके इजीली फॉर 1 month, 6 month, फॉर 12 months, 24 months, जितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप शर्मा20 कोड यूज करें और इजीली 10% ऑफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चैंपियनशिप बैच दैट अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड. ये आपका चैंपियंस बैच है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है and it is starting from 15th of December. I am taking modern history, in ancient history and medieval history courses also. So if you are interested, you can join these batches. अगर आप interested हो, आप इन batches को join कर सकते हो. ठीक है, इसी नोट पे हम अपना सेशन शुरू करते हैं. The link is also given below in the video to subscribe to Unacademy Plus. Okay, the championship batch that has been launched. तो आज के चैप्टर से शुरू करते हैं. गवर्नेंस में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे एंड ई कोड्स. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का जीएस पेपर 2 का, बिकॉज नाउ आवर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है.
तो इसीलिए जितने भी आपको एफर्ट्स गवर्नमेंट के गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन के पढ़ने हैं वो आपको तैयार करने होंगे इस चैप्टर से, ठीक है। सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू डिजिटाइज, ठीक है, दी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एनएसडीजी की बात करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एनएसडीजी, द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी गेटवे। आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, बट स्टिल इफ यू मेक रनिंग नोट्स इन द क्लास इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिवाइज। So what is NSDG? NSDG is National E-Governance Service Delivery Gateway. A gateway, a platform through which services of the government are provided on nation basis. That means nationally. ठीक है, तो नेशनली सर्विसेज गवर्नमेंट की लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, ये एक ऐसा गेटवे है। एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड? ई गवर्नेंस सर्विसेज। दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट, जैसे पहले आप जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी थी उसको कम करके अब डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा ये प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टू इंक्रीज द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। Now when we talk about NSDG, it is an initiative. अब prelims के लिए आपको क्या पढ़ना है कि which ministry is involved. For prelims you have to study कौन सी ministry involved है. So it is an initiative which is taken by the Department of Information Technology because it is e-governance, electric, e का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट विल कम अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी, ठीक है। एंड दिस डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अप दिस गेटवे। इस प्लेटफॉर्म को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मिनिस्ट्री को दी गई है। एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। जब भी आपको एमएमपी कहीं सुनने को मिले न्यूज़पेपर में तो याद रखिएगा एमएमपी मीन्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। दैट मीन्स इट्स अ अर्जेंट प्रोजेक्ट दैट हैज टू बी लॉन्च्ड। मिशन मोड जब आ जाता है ना किसी प्रोजेक्ट का, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, मतलब उसको जल्दी से लॉन्च करना है, ठीक है। इट इज ऑन अलर्ट मोड, जल्दी लॉन्च करना है, टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस सच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेसिंग, मैसेजिंग एंड रूटीन स्विचिंग. Now basically when you approach physically, when you approach any government department, so it takes a lot of time to hear your case. आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाओ, एक दिन में काम हो जाए वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, राइट? इफ यू आर विजिटिंग फिजिकली एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, to say that in one day, in a single day, they are going to listen to you and they are going to clear off your file, that is rare and that is surprising अगर एक दिन में कहीं हो जाए काम। तो इसीलिए ये जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, यहाँ फाइल अटक रही है, वहाँ फाइल अटक रही है, ये सब खत्म हो जाएगा ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे के थ्रू, ठीक है। तो जो रेड टेपिज्म है ना हमारे डिपार्टमेंट में, the red tapeism that we talk about, that will be eliminated through this platform. Plus it will also be satisfactory for the citizens also because their needs, their complaints will be finished off, they will be solved in a timely basis. Now NSDG is a standard based messaging middleware for a e-governance services. That means it provides communication link between two and more departments also. जो डिपार्टमेंट है ना उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है तो फाइल्स जो होती हैं वो हमेशा पेंडिंग रह जाती हैं. द फाइल्स वाई दे आर kept on pending because the communication gap between the departments is huge. डिपार्टमेंट के बीच का गैप इतना ज्यादा है कि फाइल्स बीच में अटक के ही रह जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच द सिटीजंस हैव टू बेयर द ब्रांड. सो दैट इज वाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिपार्टमेंट्स की कम्युनिकेशन को भी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, फैसिलिटेट करेगा. क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. एनएसडी का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक पॉइंट है वो आप लोगों को समझ आ गया तो फटाफट से बताएंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ई गवर्नेंस, अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में इन दिस क्रैश कोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट गवर्नेंस. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट ई गवर्नेंस. हमने एक छोटे स्केल पे ई गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है. ई गवर्नेंस जो होता है इंडिया में, इट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अ लेमैन्स टर्म. अगर हम लेमैन टर्म में बात करें, एक नॉर्मल टर्म में बात करें तो ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन.
राइट, सो दैट दी इट इज सिटीजन सेंट्रिक ऑल्सो। ये भी याद रखिएगा कि ई गवर्नेंस हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग इट टू सेटिस्फाई द सिटीजन्स, टू गिव देम परफेक्ट परफॉर्मेंस सो दैट दे आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड देयर वर्क। तो इसीलिए, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज अगर सारा डेटा लिस्टेड होगा पोर्टल पे तो अवेयरनेस बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड सिटीजन्स अल्टीमेटली सेटिस्फाइड होंगे। एंड व्हेन द सिटीजन्स आर सेटिस्फाइड, एनआरकी जैसी कंडीशंस कम होती है उस कंट्री में, डेमोक्रेसी रिस्पेक्टेड रहती है विद डिग्निटी, राइट। सो ई गवर्नेंस बेसिकली इन लेमेन्स टर्म इट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, okay, and due cognizance has been taken, due responsibility also has been taken, all the careful you can say जो भी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है टू स्पीड अप द ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑल ओवर कंट्री, दैट इज पैन इंडिया, दिस ई गवर्नेंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। देयर आर सम प्लेसेस वेयर वर्क इज गोइंग ऑन, अभी भी कुछ प्लेसेस हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एट द पंचायत लेवल, right, in the panchayat level e-governance is not full-fledgedly present, ठीक है। So that is why right now all the efforts of the government are being taken to implement and speed up the implementation of e-governance, and this approach has the potential of enabling huge savings in cost through sharing of core and support infrastructure, enabling interoperability through standards and presenting seamless view of government to citizens। जब बात करते हैं हम ई गवर्नेंस की, वी ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो ई गवर्नेंस को स्पीडी मैनर में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट इज आवर कंट्री शुड बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, वी शुड बी यूजिंग ऑल द ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो भी चल रही हैं यूएस में, कनाडा में, यूके में, हमें वो सब अडॉप्ट करनी है अपनी कंट्री में, तभी ई गवर्नेंस सीमलेस हो पाएगा एंड ओनली देन द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस विल रीच आउट टू द सिटीजन्स। सेकेंडली, वी नीड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को मेंटेन करना है अपनी कंट्री में, बिकॉज देर आर पीपल हु आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड टू यूज द ई सर्विसेज। जितनी भी आपकी ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हैं, अगर इंसान एजुकेटेड ही नहीं है तो वो कैसे यूज कर पाएगा इन सर्विसेज को। सो एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अलावा हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है लोगों को टू मेक देम अवेयर ऑफ हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो व्हाट इज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, हमारी गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस प्लान क्या है, बिकॉज वेन वी नो द प्लान वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। अगर हमें विजन समझ आ जाएगा गवर्नमेंट का तो हमें समझ आएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इट टेक्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, दैट मीन्स what are the sectors where e-governance has to be implemented, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मेडिकल सेक्टर ऑल्सो, मेडिकल सेक्टर में भी इसको, हेल्थ सेक्टर में भी इसको हम इशू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, इसको एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन अनदर सेक्टर कैन बी, और दूसरा कौन सा सेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, इन दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको कहीं अपने फाइल्स, अपने फॉर्म को भरना है, राइट, यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड यू नीड टू फिल अप अ फॉर्म, सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज अप ई सर्विसेज टू हेल्प द एस्पिरेंट टू फिल अप द फॉर्म। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी हो जाएगा। येस, इन द फाइनेंस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल के एक टच पे ही आप पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, या आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, तो इस केस में फाइनेंस सेक्टर में भी इट हेल्प्स यू, राइट। ये भी फैसिलिटीज आ गई है कि आप ऑनलाइन एफडी कर सकते हो, ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हो मनी। These are the facilities. Now for investing in stocks, you don't need to go to any other broker. There are certain apps which are developed by the government through which you can purchase bonds and stocks online also. Mutual funds आप online खरीद भी सकते हो, withdraw भी कर सकते हो at the comfort of your home. So all these options they can help India to progress, to prosper. So these are the sectors wherein government can tap the digitization services. ठीक है, तो पहला इसमें एम होगा प्लान में कि हमें सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से सेक्टर्स को हम टैप करने वाले हैं इन सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए।
Second, around this idea, massive countrywide infrastructure reaching down to the remotest of village. Now we have the plan that these are the sectors which have been targeted for providing e-services. Second question comes that how to reach out to the remotest of the areas. देखो अर्बन सिटीज में टू इम्प्लीमेंट ई सर्विसेज इज वेरी इजी. अर्बन सिटीज में अगर आपको ई सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना है बहुत इजी है. पीपल आर वेरी क्विक लर्नर्स, राइट. अर्बन एरियाज में लोग बहुत जल्दी से लर्न करते हैं. प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी नाइस ओवर हियर. अर्बन सिटीज में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है. बट इन द रूरल एरियाज वेयर द इंटरनेट फ्लक्चुएशन इज प्रेजेंट. रूरल एरियाज में क्या होता है, इंटरनेट फ्लक्चुएशन होता है, राइट. सेकेंडली द सेकेंड प्रॉब्लम इज, रूरल एरियाज में सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, जल्दी से बताओ. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज यस लिटरेसी. सेकेंड प्रॉब्लम हो जाता है आपका लिटरेसी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एरियाज का प्रॉब्लम. सेकेंड हो जाता है आपका लिटरेसी. ठीक है, लैक ऑफ लिटरेसी मीन्स लैक ऑफ अवेयरनेस. जब लिटरेसी कम है तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली कम होगी, और अगर अवेयरनेस है भी, लिटरेसी नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो लिटरेसी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द टू प्रॉब्लम्स विच द रूरल एरियाज फेस, and to reach them and to establish the system of providing e-services, to train them, to make them aware, it's a tough task. ये थोड़ा सा tough call हो जाता है. ठीक है, two things are required: internet reliability, easy access to internet services, and literacy. ठीक है, clear हो गई बात. So now the next question is, further with a vision to transform e-governance for transforming governance and keeping in view the need to utilize emerging technologies like cloud and mobile platform and focus on integration of services, government has proposed to implement e-क्रांति. ये जो e-क्रांति है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 और 2022 और 23, प्लीज स्टडी अबाउट ई-क्रांति. अब आज हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी भी हम क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी, व्हाट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट टारगेटेड द सेक्टर्स, आइडेंटिफाइड दी सेक्टर्स. गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से सेक्टर्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स पे हमें टारगेट करना है, डिजिटाइजेशन लेकर आनी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट गवर्नमेंट थॉट अबाउट वाज that if we want to implement e-governance on pan India basis, pan India means all India basis, national level पर हमें लेकर आना है, तो we need to target the rural areas also. And if we want to spread e-governance in the rural areas, that means we should ensure that electricity and internet accessibility is present in rural areas. Secondly, literacy level is also present. लिटरेसी लेवल प्रेजेंट होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. अगर लिटरेसी होगी, ट्रेनिंग दे सकेंगे, वो समझ सकेंगे और सर्विसेज को यूज कर सकेंगे. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दोज सर्विसेज इन एन एरिया वेयर पीपल आर नॉट इवन अवेयर हाउ टू यूज दोज सर्विसेज. आप किसी एरिया में कुछ सर्विस प्रोवाइड करो गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लाइक लिटरेसी ही नहीं है, तो उन सर्विसेज का कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है. ई सर्विसेज होने के बावजूद भी अगर फिजिकली चक्कर लगाना पड़ रहा है डिपार्टमेंट्स का, तो ये गवर्नमेंट का ही खर्चा हो रहा है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा बचाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है, मान लो किसी एरिया में ई सर्विस तो आ गई बट इंटरनेट फ्लक्चुएशंस है, तब भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो इसीलिए वी नीड टू टारगेट, गवर्नमेंट सेड दैट वी नीड टू टारगेट दीज 2 points. नाउ हाउ कैन वी accomplish these 2 goals? First is targeting these sectors. Second is providing internet accessibility and literacy in rural areas. कैसे कर पाएंगे? So they launched e-क्रांति. इसलिए उन्होंने क्या किया, e-क्रांति लॉन्च किया अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. And e-क्रांति is also known as National E-Governance Plan 2.0. इसको हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी बोलते हैं. ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है e-क्रांति. So let us understand the vision of National E-Governance Plan and then we will study e-क्रांति. उसके बाद हम e-क्रांति पढ़ेंगे. So when we talk about vision का मतलब क्या होता है? For example, your vision is to serve the society. That is why you are preparing for this exam. आपका विजन क्या है कि एग्जाम क्लियर करना विजन नहीं होता, वो तो हमारा एम होता है. ठीक है, विजन क्या होता है कि आपका लॉन्ग पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज को करने का. ठीक है, what are your future perspectives to step into something.
सो योर विजन इज टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, टू मेक श्योर कि लोग जो है वो अपलिफ्ट हो रहे हैं अपने वल्नरेबल एरिया से, ये आपका विजन है। सिमिलरली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का विजन क्या है, मेक ऑल public services accessible. Now you can say the word, see the word is all, that means no service has been left behind. जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है उन सभी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। टू मेक ऑल पब्लिक सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज को अनाउंस कर दो कि ये सबके लिए ओपन है, आप उसकी लोकेलिटी तक पहुंचाओगे। इफ ही वांट्स टू क्रिएट अ एफडी, he can do that sitting at his home by using his mobile phone. अगर उसको कोई आरडी करनी है वो घर पे बैठकर उस मोबाइल फोन के थ्रू कर सकता है। If he wants to purchase some medicines, he can do that, right? If he wants to invest in stocks, government bonds, he can do that, ठीक है। और अगर अपनी पेंशन के बारे में इंक्वायरी करनी है किसी बैंक से तो वो भी वो घर बैठे मोबाइल के थ्रू कर सके। सो एवरी सर्विस वी मेन विजन इज टू प्रोवाइड एवरी सर्विस एंड मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ दीज आउटलेट्स। कोई एग्जांपल दो इस आउटलेट का, गिव मी वन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल दे दो कमेंट सेक्शन में। What are the common delivery service outlets through which you can provide public services to the common man in his locality? Very good. E-आधार, okay, very good. अगर आपको आधार डिटेल्स में कुछ ओमिशन कराना है, एरर आपको दिख रहा है तो आप घर बैठे करा सकते हो। बैंकिंग सर्विसेज, गूगल पे, ई पैन, ओके, यस, ये भी इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट जब पैन कार्ड, वंस माई पैन कार्ड वॉज स्टोलन, एक तरीके से चोरी हो गया था, सो आई कुड रजिस्टर अ कंप्लेन ऑनलाइन। मुझे कंप्लेन ऑनलाइन ही मैंने रजिस्टर कर दी एंड देन आई फिल्ड अप द डिटेल्स फॉर द न्यू पैन कार्ड एंड इट वाज डिलीवर्ड टू मी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर डिलीवर भी हो गया। सो एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, ऑनलाइन सब कुछ स्मूथ था। प्लस यू कैन ऑल्सो रजिस्टर FIR ऑनलाइन, ठीक है। अगेन दिस इज अ पर्सनल एग्जाम्पल, मोबाइल फोन वॉज स्टोलन, राइट, सो वी कुड रजिस्टर FIR ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ही हम रिपोर्ट कर पाए, ऑनलाइन ही सारी कार्रवाई हो गई, ठीक है। इवन इन लॉकडाउन वी कुड रिपोर्ट द कंप्लेन ऑनलाइन। साइबर क्राइम को हम रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। फिर आपका ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे पढ़ा रहे हैं अभी लॉकडाउन में, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज पब्लिक सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन ऑनलाइन। ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन एक्सेसिबल है, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ पर बात? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू नीड टू सर्च अबाउट द एग्जांपल्स व्हिच आर फैसिलिटेटिंग योर बेसिक नीड्स, ठीक है। अब याद रहेगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं ई क्रांति की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई क्रांति। नाउ टू फुलफिल ऑल दीज एम्स ऑफ द गवर्नमेंट थॉट वी नीड टू लॉन्च आउट सर्टन पर्टिकुलर डिजिटल प्रोग्राम। कोई हमें डिजिटल प्रोग्राम तो लॉन्च करना ही पड़ेगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने ई क्रांति लॉन्च किया। व्हाट इज ई क्रांति? इट इज अ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू एक्सेलरेट ई गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया। The mission of government was that we are launching out services online, but there are still people and areas who are not aware about those services. We need to train them. We need to make sure that the internet accessibility is also there. So e-Kranti has been launched. Why? क्यों launch किया गया है? ताकि हम e-governance को speedy manner में implement करवा सकें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। हाउ ई क्रांति इज गोइंग टू हेल्प गवर्नमेंट इन अ स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। द विजन ऑफ ई क्रांति इज टू इंश्योर गवर्नमेंट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिलीवरिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू सिटीजन्स। सिटीजन्स को सारी गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड कराएगा ई क्रांति। बट नाउ यू विल वंडर, मैम, इफ पीपल आर नॉट लिटरेट इन अ पर्टिकुलर एरिया, how is e-Kranti is going to help them in accessing the services? मान लो in some area there are no internet facilities, then how is e-Kranti going to help those people, right, to access these services without internet? Okay, for that e-Kranti has been launched in a MMP format. MMP means mission mode format. It will provide training also. e-Kranti क्या करेगा? लोगों को education भी देगा how to use digital services. It will provide training also. Secondly, it will make sure that it will collaborate with the private enterprises to make sure that internet facility
ऑल्सो इज प्रेजेंट इन रूरल एरियाज। ये भी मेक श्योर करेगा कि इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो रूरल एरियाज तक पहुंच रही हैं, बिकॉज अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप कोई भी ई सर्विस नहीं यूज कर सकते। सो व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज ऑफ ई क्रांति, यानी कि कौन से एरियाज में ई क्रांति टैप करने वाला है, टारगेट करने वाला है। ठीक है, पहला हो जाएगा ई एजुकेशन, बिकॉज इन द लॉकडाउन व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे पढ़ाई हो रही है, हाउ गवर्नमेंट स्कूल्स आर मैनेजिंग टू टीच देयर स्टूडेंट्स बाय डिजिटाइजेशन। ठीक है, डिजिटाइजेशन करके, जैसे सभी स्कूल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, इसी तरीके से डिजिटाइजेशन हो रही है। इवन इन केरला देयर आर मोबाइल वैन्स विच आर गोइंग ऑन, देयर आर बिग LCD स्क्रीन्स ऑन दोज वैन्स थ्रू विच टीचर्स आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक गांव में मोबाइल वैन्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसमें LCD टीवी होगा। सभी बच्चे बैठ जाते हैं उस एरिया के और टीचर उस LCD टीवी के थ्रू पढ़ा रही होती है। ठीक है, सो दीज आर द इनिशिएटिव्स विच हैव बीन लॉन्च्ड। ये इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू इवन टू द रूरल एरियाज। ई हेल्थ केयर, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी मेडिसिन है जो आपको रिक्वायर्ड है, अभी लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते थे, यू कुड ऑर्डर देम ऑनलाइन। Then farmers, they are tapping the farmers also. Farmers also they are being trained by government. उनको train किया जा रहा है that how they can sell their crops online also. How they can purchase fertilizers, pesticides etc. online also at minimum price. Security, ठीक है। अब ई क्रांति का एक और पर्पज ये है, बिकॉज दे नो दैट इफ एनीथिंग इज डिजिटाइज सिक्योरिटी ब्रीचेस हैपन। जब भी कुछ डिजिटाइज होता है सिक्योरिटी ब्रीचेस होते ही होते हैं, तो सिक्योरिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी ई क्रांति ने ली है टू प्रोटेक्ट द डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन, सो एवरी पर्सन, राइट, ही और शी इज केयर दैट इफ वी आर putting in our bank account number or IPIN or MPIN, so it can be breached, it can be stolen, because data theft होते हैं, it's a reality. So e-Kranti is also, you can say, ensured its users and customers that your data is protected. No data breach we can allow it to happen on the apps or the platforms. Financial inclusion कैसे? क्योंकि अब क्या है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है आपके एरिया में, आप फिर भी मैसेजिंग के थ्रू, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना बैंक बैलेंस जान सकते हो। एवरी बैंक हैज अ पर्टिकुलर नंबर, इफ यू टाइप दैट नंबर along with your बैंक अकाउंट नंबर, यू कैन गेट टू नो अबाउट योर बैंक बैलेंस, राइट। सभी को पता है ये फैसिलिटीज के बारे में, ऑलमोस्ट हर बैंक ये फैसिलिटी देती है कि थ्रू नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज ऑल्सो विदाउट internet connection you can know your bank balance. So financial inclusion लाने की भी कोशिश कर रहा है ई क्रांति की, कम से कम आपको अपने बेसिक जो बैलेंसेस है वो तो पता चल ही जाए। ठीक है, then cyber security, you all know, we have all studied this example in previous classes also, कि अगर कोई भी साइबर इशू होता है, कोई साइबर क्राइम होता है, कोई अकाउंट हैक होता है या कोई ट्रोलिंग हो रही है, there are cyber security cells in which you can कंप्लेन, यू कैन रिपोर्ट ऑनलाइन मेंटेनिंग योर एनोनिमस स्टेटस। आप अपना एनोनिमस स्टेटस मेंटेन करके विद प्रूफ आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। देन जस्टिस, आपने ई कोर्ट्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। राइट नाउ इन गुजरात एंड अहमदाबाद ऑल्सो हाई कोर्ट्स दे आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन। सभी ने वो वीडियोज देखे यूट्यूब पे जो आ रही हैं, राइट, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है केसेस की अब हाई कोर्ट्स में। इन हाई कोर्ट्स देयर आर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग्स that is happening. So e-Kranti is facilitating these e-courts and live streaming. इसमें किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है? e-Kranti का ही कंट्रीब्यूशन है। प्लस स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन फ्री वाईफाई ऑल्सो। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स है ना, बच्चों को वहां फ्री वाईफाई मिल रहा है टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ गई। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स और आउटकम्स ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं? Now without looking at the slide, just let me know in the comment section, what do you think, what are the benefits of e-governance? आप लोगों को क्या लगता है e-governance के क्या benefits होंगे? Let me know in the comment section, जल्दी से बताएं। Yes, first benefit is convenience. पहला convenience, time saving, good. Speed functions, speedy implementation you can say. Time and money is saved. Transparency, yes, very good. Transparency भी है। Better efficiency in governance, यस, एफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी आपके जो बेनिफिट्स हैं, इट विल इंप्रूव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली एंड इट विल आल्सो इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ पीपल, यस और नो। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। ठीक है,
So first benefit or outcome is enhanced transparency, accountability. Expanded reach of governance. Now with e-education you are reaching to the remote areas. तो your e-governance is expanding. आप remotest areas तक पहुंच रहे हो, ठीक है, आपकी पहुंच बढ़ रही है. Then it will improve public administration. It will enable environment for promoting economic development also, financial inclusion के through, ठीक है. And then improved service delivery in the form of better access to information and quality service to citizens. Now when we talk about economic development, हम financial inclusion की बात करते हैं. Do you all know that in remote areas government is also employed certain important people. They have given employment to people who spread awareness about banking activities in the remote areas, village areas. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SBI ब्रांच हैज बीन ओपनड अप इन अ रिमोट एरिया, ठीक है. वहां पर कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज भी बैठे होते हैं, एक या दो, जो कि आपको CSP, जो कि वहां पर जो लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट. दे हेल्प देम, दे गिव देम द नॉलेज, राइट, हाउ टू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, हाउ टू साइन अ चेक, हाउ टू फॉर्म अ चेक, कैसे एक चेक लिखते हैं, ठीक है, हाउ टू क्रिएट RDs एंड FDs एंड व्हाट इज RTGS. ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड दे आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ओनली. ये गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करते हैं इनको, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसको भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बोलते हैं. वाई? बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स व्हेन यू आर ब्रिंगिंग एवरीबडी इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर, यू आर गिविंग देम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड अवेयर, मेकिंग देम अवेयर ऑफ हाउ टू यूज द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है. दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. जब कोई भी फाइनेंसेस से या कंट्री के इकोनॉमी से बाहर नहीं है. बट इफ देर आर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, देर आर चैलेंजेस ऑल्सो. देखो इतना ईजी नहीं है इसको लागू करना. To implement e-governance is not very easy. So what are the challenges which is making them difficult? First is technical challenge. अब for example अभी HDFC पे प्रॉब्लम चल रही थी ना, in HDFC Bank what was happening, that daily there is a message given by HDFC that the banking site is under construction. ठीक है. HDFC अभी लॉकडाउन में काफी ये फेमस हो रहा था क्योंकि बार बार न्यूज, बार बार ये मैसेज आता था HDFC की तरफ से दैट इफ यू आर यूजिंग योर ऐप और यू आर यूजिंग वेबसाइट सर्विसेज, राइट, ऑनलाइन सर्विसेज, द साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. So people were facing many troubles in taking out money from the, withdrawing money from FD or opening up FD, etc. जो भी HDFC बैंक की सर्विसेज थी, लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि साइट अंडर मेंटेनेंस चल रहा था. इट वाज अंडर मेंटेनेंस. सो RBI ऑल्सो पॉइंटेड दिस आउट. RBI ने बोला कि ये क्या बात है, यू आर नॉट सॉल्विंग द ट्रबल्स ऑफ योर कस्टमर्स, राइट. योर साइट इज ऑलवेज अंडर मेंटेनेंस. देन व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिएटिंग दीज वेबसाइट्स एंड दीज एप्स. जब आपकी साइट 24/7 मेंटेनेंस में ही रहती है तो क्या फायदा. तो टेक्निकल चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. देर आर टेक्निकल चैलेंजेस. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ FIR ऑल्सो. FIR में क्या होता है दैट अगर मान लो इफ यू हैव फिल्ड योर नेम, योर कंप्लेंट, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स, राइट, सम इशू, सम डिस्क्रिपेंसी इन द एड्रेस. अगर आपके एड्रेस में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वापस से पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते, आपको नया FIR लॉन्च करना पड़ेगा. बात फर्स्ट टाइम इफ यू हैव फाइल्ड e-FIR, अगर आपने ऑनलाइन FIR फाइल की है एंड देर आर आफ्टर फाइलिंग द FIR यू रिकॉग्नाइज दैट देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द एड्रेस, कुछ नंबर्स की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, देर इज नो ऑप्शन टू करेक्ट द FIR और अमेंड द FIR. आपको नई FIR फिर से लॉन्च करनी पड़ेगी. ये होती है प्रॉब्लम. फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, द नेम, एड्रेस, जेंडर, दिस दैट, एवरीथिंग यू हैव टू फिल इट अगेन. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ना, ये सबसे बड़ा हर्डल है ई गवर्नेंस में, ठीक है. क्लियर हो गई सबको बात ये सारी, ठीक है. फिर लोग क्या समझते हैं, इससे अच्छा तो वहां जाकर ही काम कर लेते, ये ऑनलाइन का तो बेकार ही है, ठीक है. क्लियर हो गई बात. द नेक्स्ट चैलेंज इज इकोनॉमिक चैलेंज, ठीक है. अब होता क्या है इकोनॉमिक चैलेंज के अंदर, आपका चैलेंज आता है फॉर एग्जांपल लेट्स से कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. अब आपको क्या करना है, मोबाइल फोन्स जो हैं आपके वो बहुत महंगे हैं. आपके पास है वो QWERTY कीपैड वाला मोबाइल फोन, यू हैव दैट मोबाइल फोन ऑफ QWERTY कीपैड. उस पे ना एप्स नहीं डाउनलोड होते या हेवी स्टोरेज वाले एप्स नहीं आएंगे. योर मोबाइल फोन डज नॉट सपोर्ट दी एप्स विच हैव
हैवी स्टोरेज कैपेसिटी, विच हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, वो आपके मोबाइल फोन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको नया मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा। नाउ इफ यू हैव टू परचेज न्यू मोबाइल फोन, यू डोंट हैव द मनी टू डू दैट। रूरल एरियाज में हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़े बढ़िया स्मार्टफोन्स खरीद ले या आईफोन खरीद ले या OnePlus खरीद ले, ठीक है। तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ इन द लॉकडाउन देयर वर सम एग्जाम्स विच वर बीइंग कंडक्टेड। लॉकडाउन में अभी काफी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एंड इन सम ऑफ द एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल अभी सीए के एग्जाम्स होके चुके हैं, they wanted to see your status on आरोग्य सेतु ऐप, if you are safe from COVID or not, ठीक है। many students they complain that they do not have the required mobile phone to download the app। काफी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। they were belonging from the rural area or economically they were financially not very sound। they complained, ma'am we do not have the ma'am or sir we do not have the mobile phone which supports आरोग्य सेतु। so in that case what we should do, आप तो आरोग्य सेतु ऐप में स्टेटस देखकर ही हमें एंट्री दोगे एग्जाम हॉल में, हमारे पास तो वो मोबाइल फोन ही नहीं है, तो हम क्या करें। सो दे वर बोरोइंग मोबाइल फोन्स फ्रॉम देयर नेबर्स एटसेट्रा एंड दे वर लॉट ऑफ टेंशंस बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, इसकी वजह से भी ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस आर सोशल इश्यूज, ठीक है। अब आपका इधर चैलेंज आता है सोशल इश्यूज का। तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स अगर आपके एरिया तक वो फैसिलिटी अभी पहुंची ही नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी इशू की वजह से आप क्राउड से बाहर हो जाते हो, ठीक है। सेकेंडली द यूजेबिलिटी, अगर आपके एरिया में उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उस ई गवर्नेंस सर्विस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से FIR की सर्विस देख लेते हैं, ठीक है। एक रूरल एरिया में पुलिस स्टेशन काफी दूर नहीं होते, एक क्लस्टर ऑफ विलेज में एक पुलिस स्टेशन होता है जो एक्सेसिबल होता है। उस केस में EFIR की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस वहां पर इतने केसेस नहीं होते कि आपको FIR लॉन्च करनी पड़े, और वहां भी अगर आप EFIR की फैसिलिटी लेकर आ जाते हो दैट इज यूजलेस, प्लस गवर्नमेंट का पैसा भी उसमें खर्च हो रहा है और उसका कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। तो यूजेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है। इफ यू आर लॉन्चिंग एनी सर्विस इन एन एरिया वेयर द सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड, right, then the government money and the citizens money is used by the government, right। आप टैक्स देते हो, आपका पैसा यूज होता है, तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, वहां पर तो यूज ही नहीं हो रहा वो सर्विस, ठीक है। क्लियर हो रही है बात सभी को यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके बैंक्स, एक ही बैंक है एक रूरल एरिया में, देयर इज वन बैंक ओनली इन अ रूरल एरिया, तो आपको यहाँ पर एंड इट इज all the people, all the houses, they are in the periphery of that bank, that means it is easily accessible to the people। is there a use of launching heavy mobile applications related to this banking facility or banking service? no। इसमें कोई जरूरत है कि आप बड़े बड़े एप्स निकालो, बड़े बड़े आप प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करो SBI के लिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप लॉन्च कर देते हो तो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर तो यूजेबिलिटी नहीं है। प्लस लेट्स से दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इज वेरी लो, दे डू नॉट हैव बिग स्मार्टफोन्स, दैट देन ऑल्सो दिस सर्विस इज वेस्ट। ये इस बैंकिंग सर्विस जो आप दोगे वो वेस्ट ही होगा अगर लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं है। देन यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इफ द ऐप इज यूजिंग ओनली हिंदी एंड इंग्लिश एंड द पीपल इन दैट एरिया दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईदर इंग्लिश और हिंदी, उनका खुद का लोकल लैंग्वेज है, तब भी वो ऐप यूजलेस है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगा ना। तो इसलिए एप्स को एरियाज के हिसाब से लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी उसमें। क्लियर हो गई सभी को बात। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स which are challenge right now for implementing e-governance। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी। अगर मान लो कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे से सिर्फ 10 बजे तक इंटरनेट आपका सही चलता है, उसके बाद फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है एरिया में, तो आप कैसे तो इंटरनेट यूज करोगे, कैसे एजुकेशन लोगे, या कैसे आप बैंकिंग सर्विसेज लोगे, ठीक है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाना भी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। सो गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव्स लाइक भारत नेट, initiatives like Saubhagya to strengthen up the infrastructure to provide e-governance services with ease to the people। Then cost, अब हमें पता है कि टेक्नोलॉजिकल जो चीज है ना वो काफी कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है। दे आर नॉट वेरी यू कैन से चीप, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होती हैं। ई गवर्नेंस मेजर्स आर कॉस्टली
These are very costly affairs and it require huge public expenditure. E-governance जो resources हैं काफी costly है because so many people are involved in coding, back end issues, they maintain the apps regularly, updates आते रहते हैं, ठीक है. तो इसके लिए भी ये कॉस्ट या आप कह सकते हो फंडिंग भी एक इम्पेडिमेंट हो जाता है आपकी ई गवर्नेंस सर्विसेज को लॉन्च करने में, ठीक है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल इन द आरोग्य सेतु ऐप द points were highlighting in the news, they were being highlighted in the newspaper that it has breached the security, it has breached the data. That is why privacy security maintain करना भी एक बहुत important factor है. And then government cannot just say that we don't know who has made the app. That is why this situation became controversial. कि government कैसे कह सकती है? First of all, they are promoting to use आरोग्य सेतु. पहली बात तो वो promote कर रहे हैं कि भाई आरोग्य सेतु डाउनलोड करो. Then they don't know that who has made this app. फिर उनको पता ही नहीं ये ऐप किसने बनाया. तो दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, दिस इज वेरी बैड फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड ऑल्सो इट पुट्स अ ब्लैक मार्क ऑन द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऊपर भी एक काला धब्बा लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये कैसी गवर्नमेंट जो प्रमोट करने के लिए भी कह रही है और फिर उसके ऊपर ये भी नहीं पता कि किसने डेवलप किया, ठीक है. एंड देन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को देखें तो इतना बड़ा डिजिटल गैप है. There are many students on Plus also who have taken the subscription, but their internet facilities are very weak in rural areas. That is why there are so many times they are facing loading problems and refreshing problems in the videos. कितने ऐसे बच्चे हैं अनअकैडमी प्लस पे जो रूरल एरिया से हैं, इंटरनेट कनेक्शन इतना वीक है कि वो लोडिंग ही होता रहता है, तो वो प्रॉपरली वीडियो नहीं देख पाते, ठीक है. फिर उनको एक पर्टिकुलर टाइम में वीडियो देखना पड़ता है, या तो सुबह सुबह या फिर बिल्कुल रात में. So this is also this digital divide is also a challenge in the implementation of e-governance services, ठीक है. तो suggestions क्या हो सकते हैं? What can be the suggestions? First suggestion is that government should focus on feasible capacity building. That means if you're launching any e-governance services, अगर कोई भी digital service आप launch कर रहे हो, make sure that the area that you are targeting it has proper internet facility and electricity connection. सबसे पहले तो ये सोच लो जो भी आप सर्विस दे रहे हो उस एरिया में इंटरनेट कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी है भी या नहीं, वरना आपका सर्विस वेस्ट है, आप टैक्स पेयर्स के पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. सेकेंडली एक हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए, राइट. दैट मीन्स आपको ट्रेन भी करना है लोगों को, अवेयर भी करवाना है लोगों को, उनके जो कंप्लेंट्स आएंगे उसको टाइमली मैनर में सॉल्व भी करना है. ये नहीं होना चाहिए कि आज कंप्लेन किया मैंने कि भाई ये फैसिलिटी अच्छी नहीं है और मुझे रिजल्ट मिल रहा है 6 महीने बाद या मुझे आंसर मिल रहा है 1 साल बाद. This is also wrong. So grievance redressal management should be there, proper file management system should be there, knowledge and training management system should be there, and government should also focus on increasing the literacy level of the area, of the people of the area where it is planning to launch the app or the e-governance services. And the training does not mean that you have to train the people only, you have to train your bureaucrats also. That means civil servants also, IAS, IPS, IRS, because they are the ones who are going to implement your services. आपको आपके ब्यूरोक्रेट्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे इस सर्विस को यूज करना है और कैसे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लोगों को, ये प्रॉब्लम्स आपको कैसे सॉल्व करनी है टाइमली मैनर में, कैसे आपको नजर रखनी है कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं. If the bureaucrats in the area are trained, then only the people can be further trained in that area. ठीक है, क्लियर हो रही है बात. तो प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम हैज टू बी देयर इन प्लेस. आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आना ही पड़ेगा, ठीक है. अब इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गए तो जल्दी से बताएं. यहां तक पॉइंट्स क्लियर है. अब बात करते हैं ई कोड्स की. लेट्स टॉक अबाउट ई कोड. ई कोड का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई कोड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ई कोड का मतलब क्या है? वेरी गुड. इलेक्ट्रॉनिक कोड, ऑनलाइन जजमेंट्स, यस, ठीक है. जस्टिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे, वेरी गुड. तो ई कोड जो होता है, दिस प्रोजेक्ट वाज अगेन कंसेप्चुलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान. ये जो ई कोड है ना, इसको किसने कंसेप्चुलाइज किया था, किस बेसिस पे? वही नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी. इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड आईसीटी, रिमेंबर? सभी को याद है लास्ट क्लास में हमने आईसीटी के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज आईसीटी? ठीक है. तो आईसीटी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी, उसी लाइन पर इंडियन जुडिशरी में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे फैसिलिटेट करना है, उसी लाइंस पर हमने ई कोड्स को तैयार किया है.
ठीक है. नाउ द विजन ऑफ ई कोर्ट इज टू ट्रांसफॉर्म इंडियन जुडिशरी. ठीक है. नाउ ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट इज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट. पैन का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया प्रोजेक्ट. It is monitored, funded by Department of Justice, and Department of Justice will come under Ministry of Law and Justice. Okay? तो ऑल इंडिया बेसिस पे हम जस्टिस को ऑनलाइन लेकर आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन में जो आपने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी हैं, इन द सेम मैनर नाउ यू कैन फ्रीली फाइल योर पिटिशन ऑनलाइन, जो तो आप अभी भी कर रहे हो वो तो राइट. और एंड ऑल्सो यू कैन गेट योर ग्रीवेंसेस सॉल्व ऑनलाइन. You can file a complaint online. You can get your remedy online, right? तो जो justice है वो आपको finally online मिलने वाला है. The project envisages efficient and time-bound citizen-centric services. For example, e-court projects, litigants charter. So ये litigants जो charter है ये भी बहुत important है. यानी कि आप जो भी petition file करोगे उसका एक rule book भी आपको online मिलने वाली है. That these are the problems. If you face these problems or violations in the society, you can easily become the litigant and you can file your petition online or complaint online. अब आपको किसी middleman को ढूंढने की जरूरत नहीं है. Then to develop, install and implement decision support systems in courts. To automate the process to provide transparency and accessibility of information of its stakeholders. अब आप easily information gather कर सकते हो. Because you can access information, that is why it is said that transparency will be maintained. ट्रांसपेरेंसी वर्ड कहाँ से आता है? जब आपके लिए इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट के प्रति, किसी भी जज के प्रति, किसी भी केस के प्रति ओपन अप होती है. एनी केस दैट इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द सेम ऑनलाइन. आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी पता लगा सकते हो. फॉर दैट पर्पज ई कमिटी हैज ऑल्सो बीन सेटअप. ये जो ई कमिटी है ये 2004 में ही सेटअप कर दी गई थी. ठीक है. इट इज लाइक अ गाइड मैप how to use IT and administrative reforms in the judiciary. ठीक है. So this is again important for your prelims. ये पॉइंट आपके prelims के लिए काफी important है. ठीक है. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? प्लीज लेट मी नो. ठीक है. अब बात आती है आपके PM वानी स्कीम की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द PM वानी स्कीम. ठीक है. So what is this PM वानी स्कीम? It's a part of GS paper 2 and GS paper 3. ठीक है. ये आपकी GS पेपर 2 बिकॉज इट्स अ वेलफेयर स्कीम तो GS पेपर 2 में आता है. ठीक है. नाउ अभी हुआ क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर का एक सजेशन. एंड व्हाट इज दैट सजेशन? द वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, द वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस. ठीक है. दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. ठीक है. दिस इज नोन एज PM वानी. वानी इज वाईफाई, तो इसमें W आ गया, एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये हो गया वानी. प्रॉब्लम क्लियर हो गई? यहां तक सभी को पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक है. अब इसके फीचर्स क्या हैं? What are the features of this particular schemes? Let us understand that. It is also a part of your e-governance. ये आपकी e-governance का पार्ट है. First feature is, write it down, पब्लिक डेटा ऑफिसेस. पहला फीचर है आपका पब्लिक डेटा ऑफिसेस, PDOs. ओके. सो इट इज लाइक अ साइबर कैफे. आप इसको कंपेयर कर सकते हो साइबर कैफे से. व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? इट विल एस्टैब्लिश, इट विल मेंटेन एंड इट विल ऑपरेट. इट विल एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट ओनली द वानी कंप्लेंट. ठीक है. जितनी भी आपकी वानी कंप्लेंट है, वाईफाई एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है, ये उसको मॉनिटर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा. ठीक है. ऑल दी वाईफाई एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स यू कैन इजीली कंप्लेन इट टू पब्लिक डेटा ऑफिसेस. ठीक है. एंड दिस ऑफिस, ये PDOs जो होंगे ये क्या करेंगे? आपकी कंप्लेंट जब मिलेगी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वाईफाई में, व्हाट विल दे डू? दे विल ईदर प्रोवाइड इंटरनेट ऑन देयर ओन, या तो अपनी तरफ से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ऑन देयर ओन, और दे विल लीज फ्रॉम सम अदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अगर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके एरिया में, तो आपको या तो अपनी तरफ से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे या लीज पर किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट आप तक पहुंचाएंगे, वाईफाई एक्सेसिबिलिटी आप तक पहुंचाएंगे. पॉइंट क्लियर होगा? दिस इज द फर्स्ट फीचर. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड फीचर.
सेकेंड इज PDO एग्रीगेट्स, ये आपका सेकेंड फीचर है, PDO एग्रीगेट्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज PDOAs, ठीक है। नाउ इट विल ऑल्सो बी सेटअप, अब ये क्या करेगा, व्हाट विल इट डू, these will, write it down, these will perform the function of, these will perform the function of authorization, the function of authorization and accounting of PDOs। ये जो आपके PDOs है ना, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, इनको ऑथराइज करेंगे PDO एग्रीगेट्स टू हेल्प यू, ठीक है। And accounting, that means whatever internet services they are providing you or whatever internet services they are leasing you, तो ये सारी अथॉरिटी ये प्रोवाइड करी जाएगी PDO एग्रीगेट्स के द्वारा और इसको अकाउंट किया जाएगा PDOs के द्वारा, ठीक है, PDOAs के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। तो आप ये बोल सकते हो PDOAs आर दी हेड ऑफ PDOs। PDOA क्या है, जो इसको मॉनिटर करेगा PDO को। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज द ऐप प्रोवाइडर, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड फीचर, द ऐप प्रोवाइडर। इट विल डेवलप, राइट इट डाउन, इट विल डेवलप द ऐप टू register users and discover the PM Vani complaint, Wi-Fi hotspots nearby। यानी कि फॉर एग्जाम्पल you will register on this app and then if you have any complaint regarding any Wi-Fi hotspot, आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हो कि आई हैव दिस कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस वाईफाई इज वर्किंग, इट विल डिस्कवर दैट वाईफाई टू करेक्ट इट, इन ऑर्डर टू टेक्निकली करेक्ट इट और अमेंड इट। उसको टेक्निकली सही करने के लिए वो आपके रजिस्टर के थ्रू उस हॉटस्पॉट को ढूंढेगा, उसे सही करेगा ताकि आगे फर्दर उससे कोई कंप्लेंट ना आए, ठीक है। कमिंग ऑन टू द फोर्थ फीचर, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री। ये आपका लास्ट फीचर है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री, ठीक है। नाउ इट विल बी सेट अप एंड इट विल मेंटेन, व्हाट विल इट डू, इट विल मेंटेन डिटेल्स of all app providers, of all the PM Vani app providers, all the PDOs, all the PDOAs, ये सभी ऐप प्रोवाइडर्स की, PDOAs की डेटा को, डिटेल को अपने पास रखेगा, उसको वेरीफाई करता रहेगा और इस डिटेल को मेंटेन रखेगा अपने डेटा बुक में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। तो ये भी ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। दिस PM Vani स्कीम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस ओनली, ओके। चलो, सो दिस वाज टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट, इफ यू एंजॉय अनअकैडमी प्लस, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड शर्मा20। अब अनअकैडमी प्लस में ना आपको डिफरेंट बैचेस हैं एज पर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस, ठीक है। बाइलिंगुअल बैच इज ऑल्सो देयर, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, एंड इन ऑल दीज बैचेस ना वी आर टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, वी आर क्लियरिंग ऑल योर सिलेबस, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑल द लेवल्स वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दी ऑल दी 3 लेवल्स। सो आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और आपको इजीली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कोड शर्मा20 यूज करते हो। एंड राइट नाउ रिसेंटली वी हैव लॉन्च दिस चैंपियन बैच। अभी रिसेंटली ना हमने ये चैंपियन बैच लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस बैच में आपको ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आई एम ऑल्सो टेकिंग हिस्ट्री कोर्सेज, ठीक है। इस बैच में हम भी हिस्ट्री कोर्सेज ही ले रहे हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, फ्री PDF, नोट्स, रिसोर्सेज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शर्मा20 कोड यूज करके आपको इजीली 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड ऑल द फ्री क्लासेस दैट यू आर वॉचिंग ना ऑन अनअकैडमी प्लस, यू कैन अनलॉक ऑल द फ्री क्लासेस बाय यूजिंग दिस कोड अर्पिता10। ये फ्री क्लासेस यूज करके ना, ये कोड यूज करके आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हो अनअकैडमी प्लस पर, फ्री टेस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। So notes are uploaded on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can, download the notes from there. Thank you.